Good morning, dear students. Today we will discuss some other methods to separate the substances from their mixers. We have discussed about hand picking method, threshing method, and winnowing method in our previous video. Now, today we will discuss some other methods which are sedimentation, decantation, and filtration method. As we already discussed about winnowing and hand picking methods, so sometimes it's not possible to separate components of a mixer by winnowing and hand picking method. For example, there may be a lighter impurity like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? As we all know about this thing, that when we cook rice or pulses, we found that some lighter impurity like dust and soil particles are in that pulses or rice. So, what do we do at that time before cooking rice or pulses? You have seen your parents who is cooking rice or pulses for you. We usually washed rice or pulses before cooking. When we add water to these, the impurities like dust particles get separated. These impurities go into water. Now, what will sink to the bottom of the vessel? As we already discussed about the sinking and floating of particles. As we know that the particles which are heavier, such particles sink to the water. So when we have mixture of rice and dust, we can easily say this thing that rice will sink in that water and the dust will, what will happen with dust? What do you think, student? The 100% that dust will mix with that water and rice will sink on the liquid, that is water. So you observed that, you have definitely seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water. When the heavier component in a mixer settles after water is added to it, the process is called sedimentation. And when the water is removed, the process is called decantation. Let me speak another way. जब हम लोग राइस या पल्सेस बनाते हैं अपने घरों में, यू हैव सीन इन योर होम, तो हम लोग राइस और पल्सेस बनाने से पहले अच्छी तरीके से राइस और पल्सेस को धो लेते हैं. उससे क्या होता है कि जो राइस के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिले होते हैं, जो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, वी कैन नॉट इवन सी विथ नेकेड आइज, वो जब राइस के साथ मिक्स होते हैं, जब हम उसमें पानी डालते हैं, तो पानी के साथ वो डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं और जो राइस होता है वो नीचे बैठ जाता है. ठीक है. और हैवियर कंपोनेंट यानी जो राइस है उसके नीचे बैठने को हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं. सो व्हाट इज सेडिमेंटेशन? व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सर settles after water is added to it. This process is called sedimentation. हम इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के मिक्सर्स में, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को अलग करने के लिए. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन.
तो इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और जब हम चावल साफ करते टाइम पानी को बाहर निकालते हैं, तो पानी के साथ जो डस्ट पार्टिकल मिले होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो जो हम डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल रहे हैं, इस मेथड को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। ओके, व्हेन द वाटर is removed, the process is called decantation. These two methods are very important. Number one, sedimentation, and number two, decantation. When the heavier component in mixer settles after water is added to it, this process is called sedimentation. And when the water is removed, the process is called decantation. Okay, now we have some other examples also. We can use same principle is used for separating a mixer of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixer can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. ओके, आप हम लोग कोई दो लिक्विड जो आपस में इनसॉल्युबल हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय दिस प्रोसेस, एज वी कैन डू दिस एक्टिविटी विथ mixer of oil and water. Dear student, at first mix oil and water, then separate oil and water by this process. What we have to do for that, we have to do one thing. हम लोगों को सबसे पहले इस मिक्सर को थोड़ी देर के लिए, इफ़ यू हैव अ मिक्सर, पहले मिक्स करो उस वाटर और ऑयल को और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। ठीक है, जब आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, देन यू कैन एबल टू सी टू सेपरेट लेयर्स। और एक लेयर, ऊपर की लेयर पे आपको ऑयल दिखेगा और नीचे की लेयर में आपको क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा। इसी को सेडिमेंटेशन बोला जाता है। एंड अब हमने उसको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर की लेयर है यानी जो टॉप लेयर है उसको सेपरेट कर देंगे, उसको टिल्ट करके उसको बाहर निकाल देंगे। तो वो सेपरेट करना, उसको बाहर निकालना, इसको हम लोग डिकेंटेशन बोलते हैं। ओके, नाउ अगेन कंसिडर अ मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. Okay, we have another example for that. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually, we use strainer to remove tea leaves. Try decantation. आप डायरेक्ट स्टेनर का यूज़ न करके डिकेंटेशन प्रोसेस यूज करें। मतलब आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, इट हेल्प्स अ लिटिल बिट, नॉट 100% रिजल्ट यू विल नॉट फाइंड। हम लोग स्टेनर का यूज करते हैं टी लीव्स को टी से अलग करने के लिए। वी कैन डू वन थिंग, जैसे हमने टी बनाई है, ठीक है, देन हम लोग एक काम करें, थोड़ी देर के लिए उस मिक्सर को छोड़ दें। जब हम उस मिक्सर को छोड़ देंगे तो होगा क्या, जो दोनों पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, टी लीव्स अलग हो जाती हैं और टी अलग हो जाती है, और फिर हम उसको टिल्ट करके अलग से टी दूसरे कंटेनर में निकाल सकते हैं। लेकिन ये 100% प्योर नहीं होता, 100% सही नहीं होता। इस वजह से हम किस चीज़ का यूज करते हैं, स्ट्रेनर का यूज करते हैं। स्ट्रेनर का यूज करके, जो स्ट्रेनर में होल्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, तो वहाँ से जो लिक्विड होता है वो तो बाहर निकल जाता है, और जो टी लीव्स होती हैं दैट रिमेन इन द स्ट्रेनर। और इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? तो आपका आंसर होगा सर फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेथड से हमको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। ओके, then we use filtration method. तो filtration, you know what is filtration now.
Let's now consider the example of water and that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let's see if we can use some method of separation to remove insoluble impurity like soil from the water. तो अब आप एक काम और कर सकते हैं, आप कोई डटी वाटर ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमारे नलों में जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम पे गंदा पानी आता है, ठीक है। अगर आपके पास गंदा पानी नहीं है तो आप एक कंटेनर में वाटर लेके उसमें कुछ डस्ट मिक्स कर दें। देन अब आप उसको सेपरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप उसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं? यू कैन अप्लाई डिकेंटेशन मेथड। आप उसको उसमें डिकेंटेशन मेथड भी अप्लाई करेंगे और फिल्ट्रेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिकेंटेशन मेथड से भी ये साफ होगा। डिकेंटेशन मेथड से ये कैसे साफ होगा? हम लोग सपोज करो एक ग्लास में आप पानी ले लो, ठीक है। थोड़ी देर तक उसको उसी तरीके से रहने दो, उसको सेटल डाउन होने दो। और जब सेटल डाउन वो हो जाएगा तो कुछ वाटर ऊपर रह जाएगा और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि वो पानी कुछ ऊपर की लेयर में साफ हो चुका है। सो दिस मेथड इज डिकेंटेशन मेथड। और अब डिकेंटेशन मेथड से अब आप उसको टिल्ट करके बाहर करोगे उस पानी को। नाउ यू स्लाइटली टिल्ट द ग्लास without disturbing the water. Okay, let the water from the top flow into another glass. Okay, and this process is called decantation. Okay, now अब लेकिन जैसे ही आपने उसको दूसरे कंटेनर में डाला, दूसरे ग्लास में डाला, क्या अभी भी उसका कलर सेम है या अभी आपको कुछ चेंजेस उसमें लग रहे हैं? क्या अभी भी वो मडी है? व्हाट डू यू थिंक? वो कुछ ना कुछ मडी अभी भी होगा, ठीक है। नाउ वी कैन फिल्टर इट, जैसे हमने टी स्टेनर के साथ काम किया। तो क्या टी स्टेनर यहाँ पे काम करेगा? यू विल से दैट नहीं कर सकता टी स्टेनर यहाँ पर काम, क्योंकि टी स्टेनर के जो पोर्स होते हैं वो कंपेरेटिवली लार्जर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर टी स्टेनर यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे टी स्टेनर यूज नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के लिए, तो क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज क्लोथ फॉर दैट, ठीक है। हम एक पीस ऑफ क्लोथ ले सकते हैं। जो पीस ऑफ क्लोथ होता है, देयर आर स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। जो जब वूविंग प्रोसेस की जाती है, वीविंग प्रोसेस की जाती है, तो वीविंग प्रोसेस में कुछ पोर्स रह जाते हैं, ठीक है। हम लोगों को वो दिखते नहीं है लेकिन उसमें कुछ पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही फाइन पोल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल पोल्स होते हैं। तो जब हम उसमें ऊपर से वाटर डालते हैं तो वो स्मॉल पोर्स में वो जो डस्ट पार्टिकल है वो रह जाता है। सो वी कैन यूज दीज पोर्स इन अ क्लोथ एज अ फिल्टर। ओके, नाउ अब आपने ये प्रोसेस भी कर लिया। देन आफ्टर दैट द वाटर इज स्टिल मडी, impurity can be separated by then filter that has even smaller folds, ठीक है। हमारे पास फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर में उससे भी फाइन पोल्स होते हैं, उससे भी स्मॉल पोल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। सो a filter paper is one such filter that has very fine pores in it. A filter paper folded in the form of a cone is mixed onto a funnel. The mixer is then poured on the filter paper. Solid particle in the mixer do not pass through it and remain on the filter. So we can do like that. तो हम इस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। We use decantation and filtration process for separating such type of mixer, ठीक है। तो इस टाइप के मिक्सर को हम लोग अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। थैंक यू।